Hello everyone, I am Neetika back again with MCS 15. Today we will be doing the block 2, the remaining part of MCS 15. In the previous video I discussed about the block 1 which was all about communication, interviews, job application, group discussion and managing organizational structure. Today we will be covering these many things. So unit 6 comprises of meetings, how you should go ahead and participate in the meetings. Unit 7 is taking notes and preparing for meetings. Unit 8 talks about presentation skills part 1. Unit 9 talks about presentation skills part 2 and Unit 10 talks about negotiation skills. So talking about meetings, let's understand what is exactly a meeting. Now, when we say a meeting, you understand, our basic understanding is when we are, with a person or with a group of people. So we have to communicate with them. But then here we are talking more of a formal meeting in an office. So how should we take it ahead? So in a meeting, you should always take care of the greeting thing. When there are seniors present, how you should greet them with a smile. Good morning everyone, or good afternoon everyone, and how are you doing? It's nice to meet you. इस तरीके के phrases का आपको use करना चाहिए so that meeting एक अच्छे note पर शुरू हो सके. Okay, so meeting basically in the meeting we have opening. We have the middle of the meeting and the closing of the meeting. The basic focus is on opening and closing. Middle part goes by default according to the content. लेकिन opening और closing of the meeting बहुत strong होनी चाहिए. Opening of the meeting का मतलब हो गया जो basic greeting आप करते हैं लोगों से. Good morning, how are you? I am good, how about you? इस तरीके के phrases का use करते हैं. क्लोजिंग के टाइम पर हम बोलते हैं इट वॉज नाइस मीटिंग यू, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. इस तरीके के फ्रेजेस से हम उसे क्लोज करते हैं. और मिडिल में द मेजर कंटेंट ऑफ द मीटिंग ऑफ कोर्स. ओके, नाउ मीटिंग कुड बी अ one-on-one मीटिंग एंड इट कुड बी अ ग्रुप मीटिंग एज वेल. सो इन बोथ द केसेस यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. द अदर थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर इन दिस यूनिट इज अबाउट द वोकैबुलरी. सो the more effective words you use, the more effective you make your meeting. So जितना अच्छे words का आप use करोगे उतना ही अच्छी आपकी meeting होगी. हम अपनी vocabulary को हमेशा हमें strong रखना चाहिए. New words ढूंढते रहना चाहिए. For example, if I have a word called as practical, we can always replace it with a word called as pragmatic. So this is the synonym of practical, but इससे लग रहा है कि हमारी vocabulary थोड़ी strong है. So हम कुछ अच्छे words का use करें, इससे हमारी communication और strong होती है. Okay, now talking about the pronunciation thing, the other thing in the grammar part of this unit, one was vocabulary, the other thing is pronunciation. So let us talk about the pronunciation thing. बेसिकली हमारे पास नाउन और वर्ब होता है. एक ही वर्ड जब नाउन की तरह भी यूज हो रहा हो और वर्ब की तरह भी. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट. नाउ प्रेजेंट आप ऐसे भी बोलते हैं आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर यू, यानी कि मैं आपके लिए एक प्रेजेंट लाया, एक गिफ्ट लाया, राइट. तो वो प्रेजेंट भी होता है. और एक आप बोलते हैं आई वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, कि मैं वहां पे मौजूद था. यहां पर ये वर्ब है, यहां पर ये नाउन है. लेकिन हम प्रोनाउंस कैसे करें कि दोनों में फर्क कर सकें, ये जरूरी है. सो प्रेजेंट में मेरे पास 2 सिलेबल्स है, 2 पार्ट हैं जिन पर मैं इसे बोलती हूं प्रे और जेंट. जब मैं नाउन की तरह इसे बोलूं तो मैं पहले वाले पार्ट पर ज्यादा स्ट्रेस दूंगी. आई विल से प्रेजेंट. प्रे पे ज्यादा स्ट्रेस दूंगी और लास्ट वाले को थोड़ा धीमे बोलूंगी. सो इट विल बी प्रेजेंट. सो आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर यू. लेकिन जब मुझे वर्ब के फॉर्म में यूज करना है तो मैं इसके सेकेंड पार्ट पे स्ट्रेस दूंगी. आई विल से आई वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, आई वॉज प्रेजेंट इन द स्कूल. सो प्रेजेंट हो जाएगा. तो वहां पर ये वाला जो पार्ट है
उस पर हम स्ट्रेस देंगे. सेम अप्लाइज फॉर एक्सपोर्ट. दिस इज अनदर वर्ड जो हम यूज करते हैं. अगर आप नाउन की तरह यूज कर रहे हैं इट विल बी एक्सपोर्ट, और अगर आप वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इट विल बी एक्सपोर्ट. ओके, सो आपको वो ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल अभी एक और है लाइक प्रोजेक्ट. सो अगर वो नाउन है सो इट विल बी प्रोजेक्ट. आई वॉज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. प्लीज प्रोजेक्ट योर स्क्रीन दैट साइड. तो वहां पर आप वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, जहां पर इस वाले पार्ट पर द लैटर पार्ट विल बी स्ट्रेस्ड. अगेन सेम थिंग अप्लाइज ऑन प्रोसेस एंड प्रोसेस. Okay, this was a good process to learn and I processed the whole thing very nicely. So process is verb and process is noun. This is the pronunciation part of unit 6. Now talking about unit 7, which talks about taking notes. So it says taking notes and preparing for meetings. Now you would have gone through the reports if you have gone through your 10th and 12th classes. तो वहां पर आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी बनाई और नोट्स भी बनाए होंगे. जब आपके कोई टीचर्स या ट्रेनर्स आपको कुछ नोट्स देते हैं तो आप फटाफट उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको नोट देते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर राइजेस the pressure increases, it decreases, the value of the organization structure was like this. So आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को पूरा ना लिख के आप उसका एब्रीविएशन लिखते हैं. इस तरीके के सिंबल्स का यूज करते हैं हाई के लिए, लो के लिए. कुछ टेबल्स आप फटाफट बना लेते हो वैल्यूज दिखाने के लिए. तो ये सारी चीजें जो हैं हम नोट्स बनाने के लिए यूज करते हैं. इनको रिडक्शन डिवाइसेस भी कहते हैं, जिससे कि आप बोलने वाले की स्पीड को मैच कर सको और जल्दी जल्दी नोट्स को बना सको. एक एक वर्ड लिखना मुश्किल है तो इसीलिए हम एब्रीविएशन से फटाफट उसे फिनिश करने की कोशिश करते हैं. पूरा टेम्परेचर लिखने की बजाय मैं TEMP ही लिख लेती हूँ. सो ऑल दिस कम्स अंडर नोट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर मीटिंग, हियर देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड एज मिनट्स ऑफ मीटिंग. मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं? जब आप किसी भी मीटिंग में होते हैं तो वहां पर आपको मीटिंग में क्या हुआ ये नोट करना होता है. तो जो भी व्यक्ति ये करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड स्क्राइब, और दैट पर्सन्स ड्यूटी इज टू टेक नोट्स ऑफ ऑल द मीटिंग पॉइंट्स दैट हैव हैपेंड. तो मीटिंग के अंदर वो जितने भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं वो सारे पॉइंट्स को वो नोट करता है और फिर एक रिपोर्ट तैयार करता है. दैट्स कॉल्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग, और शॉर्ट फॉर्म में उसको MOM कहते हैं. जिसमें कुछ नहीं, हम डेट लिखते हैं, एजेंडा लिखते हैं, पार्टिसिपेंट्स लिखते हैं और उसके बाद पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन लिखते हैं. यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स बताते हैं कि किसने क्या क्या डिस्कस किया. ऑब्जेक्टिव क्या है मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने का? सपोज कीजिए कि किसी ने ये मीटिंग अटेंड नहीं की है तो वो ये पढ़कर पॉइंट्स को समझ लेगा, एक रिकैप हो जाएगा. प्लस जो लोग इस मीटिंग में नहीं आए थे उनके लिए भी, और जो लोग थे अगर उनसे कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो वो भी इसको रिवाइज कर लेंगे. सो दोनों तरीके के लोगों के लिए ये MOM इज इम्पॉर्टेंट. So this was about the meeting thing where you can take notes of meeting. Now we'll come to unit 8. Now unit 8 talks, and unit 8 and 9 both talks about presentation skills. Now let us talk about presentation skills. इन अर्लियर वीडियो जब हमने इंटरव्यू की बात की थी तो हमने बात किया था कि किस तरह से हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब आपको अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी होती है तो हम प्रेजेंटेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं कर रही हूँ दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन वेयर आई एम शेयरिंग माई थॉट प्रोसेस, my knowledge about the topic with you, right? So I am using the tool that I am using is the whiteboard. In the presentation you can use any kind of tool. पर अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सकते हैं. एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए ऑडियंस के साथ, और आप बहुत एनर्जेटिक और बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करने चाहिए.
क्वेश्चंस जो आप ऑडियंस के हैंडल करते हैं वो भी बहुत अच्छे से आपको हैंडल करना चाहिए। ये सारी चीजों का जब आप ध्यान देते हैं तब जाकर वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन कहलाती है। सो व्हाट आर द पैरामीटर्स? पैरामीटर्स आर कम्युनिकेशन, दैट हैज टू बी गुड, विच कंप्राइजेज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, योर आई कॉन्टैक्ट, आपके जेस्चर, पोस्चर्स, ठीक है, आपकी बॉडी का पोजीशन, आपके हैंड का मूवमेंट, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। ऑफ कोर्स योर इंग्लिश लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हैं, फ्लुएंसी है, स्ट्रेस, टोन, इंटोनेशन, ये सारे पैरामीटर्स हैं। कितना स्पीड है आपका, क्या वॉल्यूम है, ये सब भी यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद इट विल ऑल्सो योर कॉन्टेंट, कि जिस चीज के बारे में आप बता रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द टाइम फ्रेम, कि जो टाइम है उस टाइम के अंदर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल दीज पैरामीटर्स अगर आप अच्छे से करते हैं तब जाकर आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर होती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एक्चुअल प्रेजेंटेशन दैट वी गिव, that is in two parts. One is the preparation of presentation and one is the delivery of presentation. तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपकी बुक्स में दी हुई है। यू शुड ऑलवेज, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द प्रेजेंटेशन स्किल्स, यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट दैट एक्सरसाइज विच सेज कि वहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको ये डिफाइन करना है कि इसमें से ये प्रिपरेशन का पार्ट है या डिलीवरी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट यू हैव टू प्रिपेयर द if I am getting my projector ready, तो मैं अपना प्रोजेक्टर रेडी कर रही हूँ, ये देख रही हूँ कि पोडियम वगैरह सब सही से लगा हुआ है कि नहीं, तो ये किस में आएगा? क्या ये प्रिपरेशन में आएगा या डिलीवरी में आएगा? ऑफ कोर्स ये प्रिपरेशन का पार्ट है जहां मैं सारे रिसोर्सेज को चेक कर रही हूँ। What about if I say that dressing yourself nicely? Now आपका ड्रेस कोड क्या ये प्रिपरेशन में आएगा या डिलीवरी में? ऑफ कोर्स ये डिलीवरी में आएगा, क्योंकि जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो आपकी ड्रेसिंग है जो दिख रही होती है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ योर डिलीवरी। कॉन्फिडेंस इज द पार्ट ऑफ डिलीवरी। क्वेश्चन हैंडलिंग इज द पार्ट ऑफ डिलीवरी। What else? So all this is delivery. Now preparing the slides, making the outline, the course structure, all that is the part of preparation. So इस तरीके से आप इनको दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं in presentation skills. Okay, now coming to your last unit, which talks about negotiation skills, which says negotiation skills. Okay, now by the word negotiation, what do you understand? It's basically the convincing power or the bargaining. तो negotiate का वैसे तो मतलब है bargain करना। बचपन से अभी तक हम बहुत नेगोशिएट करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ भी, मम्मी प्लीज खेल के आते हैं ना फिर काम कर लेंगे, या पापा हमारे साथ नेगोशिएट करते हैं कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए तो मैं तुम्हें ये मोबाइल दिलाऊंगा, आईपैड दिलाऊंगा एंड वट एवर। सो ये सब भी नेगोशिएशन है जो हमने हमेशा किया है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में यहाँ पर नेगोशिएशन का थोड़ा अलग सेंस है। नेगोशिएशन का मतलब है यहाँ पर द कन्विंसिंग पावर, हाउ मच कन्विंसिंग पावर यू हैव, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर टू मेक योर सेल्फ रेडी कि आपके सामने वाला आपकी बात को मान ले। तो क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं? ऐसे नहीं कि आप बोल दें नहीं नहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी, शट अप, यू हैव टू लिसन टू मी, नॉट लाइक दैट, बट येस बाय योर traits, by your words, by the way you talk to a person, आपको अपना negotiation skill दिखाना है। So how can you do that? For example, यहाँ पे हम कुछ situations की बात करते हैं। The first situation says welcoming, then you state your aim of the meeting. So we are talking about basically a meeting with a client. So maybe we have a meeting with a client जहां पर उन्हें हमें अपना एक नया आइडिया, एक सॉफ्टवेयर, एक कोई प्रोडक्ट उनको अपना सेल करना है। तो किस तरीके से मैं अपनी नेगोशिएशन स्किल्स यूज करूंगी? सो वेलकमिंग होगा, अपना एम स्टेट करूंगी, फिर मैं कुछ कंसेशन करूंगी,
कंसेशंस करूंगी। उसके बाद एक्सेप्टिंग थिंग्स, देन रिजेक्टिंग थिंग्स। अगर वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं ले सकती तो मैं रिजेक्ट कर सकती हूँ। कंफर्मिंग और एक्नॉलेजिंग थिंग्स, देन समराइजिंग, एंड at last looking ahead. Now let's understand one by one. By saying welcoming, which means that when you enter into the meeting you say good to see you, good morning sir, how are you. So आप एक normal एक welcome, एक आप क्या करते हो, एक greet करते हो लोगों को, एक अच्छा positive environment create करते हो. It's nice that we met after so much time. तो ये सारी चीजें आएगी वेलकमिंग में। नाउ स्टेटिंग योर एम, कि ये मीटिंग हम क्यों कर रहे हैं। सो वहां पर आप क्या बोल सकते हैं कि वी वुड लाइक टू लेट यू नो दैट वी हैव दिस आइडिया। तो आप कहते हो कि भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा आइडिया है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप अपना ऑब्जेक्टिव बता रहे हो मीटिंग का। कंसेशंस क्या है कि आप उनको कुछ ऐसे ऑफर्स दे रहे हो या टेम्पटेशंस दे रहे हो कि ये आपसे वो ये क्यों लें। सो आप उनको इस तरीके से बोल सकते हो कि इफ यू आर विलिंग टू गेट दिस सॉफ्टवेयर इन 1 month वील बी एबल टू। हो सकता है बाकी लोग आपको इतनी जल्दी ऑफर ना दे पाए, पर हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप उन्हें कंसेशन दे रहे हैं, आप उनको कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, उनको वो दे रहे हैं जो वो चाहते हैं। सो दैट कम्स अंडर कंसेशन। देन एक्सेप्टिंग थिंग्स मीन्स अगर वो आपके सामने कोई डिमांड रखते हैं तो आप बोलते हो दैट सीम्स ऑल राइट, आई थिंक वी कैन गो विद इट। मतलब आप कहते हो कि हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो वो हम कर सकते हैं। सो आप एक पॉजिटिव नोट पर उसको हाँ बोलते हो। रिजेक्ट कब करते हो, मान लीजिए वो कोई ऐसी चीज आपके सामने रखते हैं कि नहीं आप 1 महीने में नहीं, मुझे तो ये 4 दिन में चाहिए। अब आपको मालूम है कि ये फीजिबल नहीं है, कि कोई भी सॉफ्टवेयर 4 दिन में आप नहीं दे पाओगे। तो आप उनसे गलत प्रॉमिस करके आओ और फिर उसको पूरा ना कर पाओ और अपने रिलेशंस खराब करो, एक क्लाइंट को खो दो, यू लूज योर क्लाइंट। इट्स बेटर कि आप उन्हें एक रियल पिक्चर दिखाओ। सो व्हाट यू कैन से, सॉरी सर, आई अपोलोजाइज, बट 4 days would not be possible. It would take at least 20-25 days to complete this project. तो मतलब उनको रियल पिक्चर दीजिए, उनको अपोलोजाइज कीजिए और फिर बोले या आई एम अफ्रेड टू से दैट सर दैट दिस वुड नॉट बी पॉसिबल। अगर वो बहुत ज्यादा कंसेशन मांग रहे हैं या बहुत ज्यादा डिस्काउंट मांग रहे हैं जो आप नहीं दे सकते, तो आप ऐसे नहीं कह सकते सॉरी सर ये नहीं हो पाएगा। ऐसे आप बहुत ज्यादा रूड नहीं हो सकते। यू हैव टू take it very slowly and very politely in a humble way. Okay. Then confirming is acknowledging. So you say can we just understand what we discussed. तो आप एक बार उसको confirm कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। summarize कर सकते हैं, again summarize की सारी चीजें recap कर लें कि ये चीजें हमें चाहिए। एंड देन लुकिंग अहेड मतलब व्हेन डू वी मीट नेक्स्ट, इस तरीके के फ्रेजेस को आप यूज कर सकते हैं कि अब हम कब मिलेंगे, व्हेन विल वी हैव आवर नेक्स्ट मीटिंग। तो एक तरीके से आप उनसे एक एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं वेरी स्मार्टली कि क्या हमारी ये डील हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हम कब मिल सकते हैं नेक्स्ट, व्हेन विल वी हैव, विल यू बी रिप्लाइंग ऑन एन ईमेल। और मतलब आप उनसे एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट ले करके आते हो। सो ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ नेगोशिएशन वेयर you are actually trying to understand client's requirement and then answering them. So this was all about the block 2. There is a small portion of grammar in every unit, as I told in the previous video also, like active, passive and other things. You can go through them and if you have any problem you can get back to me. Rest, as I say, be safe, stay at home and thank you so much.